اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ بعض اوقات ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ہماری ذرا سی توجہ کے منتظر ہوتے ہیں۔ ہماری دی گئی تھوڑی سی بھی توجہ ان کی زندگی بدل سکتی ہے، مگر ہم اپنی زندگی میں خود کو اتنا مگن کر لیتے ہیں ارد گرد موجود لوگوں پر ہماری نظر ہی نہیں پڑتی۔ یہ کہانی سچی ہے، البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میرا نام تیمور ہے۔ میں ان دنوں چھٹی لے کر گھر میں آیا تھا۔ گھر میں صرف والدین تھے، جبکہ ہم چاروں بھائی اتفاق سے اپنی ملازمت کی وجہ سے گھر سے بہت دور رہتے تھے۔ گھر کا کچھ کام کروانا تھا، اس لیے میں چھٹی لے کر گھر آیا تھا۔ اس روز دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، اتنے میں مجھے کسی عورت کی آواز آئی۔ وہ عورت ہمارے گھر میں روزانہ صفائی کرنے کے لیے آتی تھی۔ وہ میری امی سے کہہ رہی تھی، باجی میں سچ کہہ رہی ہوں، جبکہ میری امی اس کی بات سنتے ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ میں نے اپنی امی کو اتنی اونچی آواز میں ہنستے ہوئے کبھی نہیں سنا تھا۔ یوں امی کے ہنسنے پر میں حیران ہوتے ہوئے کمرے میں آنے والی آواز پر غور کرنے لگا۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جو امی اس طرح ہنس رہی ہیں؟ جبکہ وہ کام والی امی سے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے پھر سے کہنے لگی، باجی میں واقعی سچ کہہ رہی ہوں، وہ لڑکی روزانہ ہی رات کو آ کر تندور میں سوتی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میں بھی مسکرانے لگا، کیونکہ یہ سچ میں بات بہت مضحکہ خیز تھی، مگر وہ جس طرح اپنی بات پر زور دے رہی تھی اس کی بات پر یقین کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ خیر اس روز ہم سب گھر والوں نے اس بات کو واقعی مذاق میں لیا۔ پھر اگلے روز گھر کی مرمت کرنے کی غرض سے جو مزدور اور مستری آئے تھے وہ بھی اسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا بڑے ہی عجیب طریقے سے لڑکی کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، یار کل رات کو میں نے بھی اسے دیکھا تھا، وہ تو واقعی بڑی خوبصورت اور جوان ہے، لیکن مجھے تو وہ تھوڑی دماغ کی پوری لگتی ہے، اسی وجہ سے تو تندور میں آ کر سوتی ہے۔ جبکہ دوسرا مزدور اس سے کہنے لگا، نہیں یار مجھے تو کوئی اور ہی بات لگتی ہے، ایسی لڑکیاں زیادہ تر گھروں سے باغی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ کسی کے ساتھ باغی ہو۔ اور جب وہ لڑکا اس کو چھوڑ گیا تو یہ اس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ اس طرح وہ سب ہی اپنی اپنی رائے کا اظہار اس لڑکی کو لے کر رہے تھے۔ مجھے اس طریقے سے ان کا آپس میں اس لڑکی کا ذکر کرنا بہت برا لگا۔ مجھے ان پر غصہ آنے لگا۔ میں نے ابھی تک اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، مگر انسان ہونے کے ناطے ہم کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں بغیر حقیقت کو جانے؟ میں ان کی بات کو بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے ان سے غصے میں آ کر کہنے لگا، اپنے کام پر زیادہ توجہ دو گے تو اچھا ہوگا، جو کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں اس طرح سے باتیں نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں میرے یہ الفاظ سنتے ہی وہ دل میں ضرور سوچتے ہوں گے، بڑا آیا ہے بھاشن جھاڑنے والا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ اسی سوچ کے ہی مالک ہیں۔ وہ جس تندور کا ذکر کر رہے تھے وہ تندور ہمارے محلے میں ہی تھا۔ ہمارے محلے میں ایک پلاٹ بہت دیر سے خالی پڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی سرکاری زمین بھی تھی، وہ بھی یوں ہی صدیوں سے خالی پڑی تھی۔ اس وجہ سے وہاں پر محلے والے ہی ایک آدمی نے تندور لگا رکھا تھا۔ لوگ روزانہ ہی تندور میں روٹیاں لگواتے تھے۔ تب سردیوں کے دن تھے اور سردیوں میں گیس کی شارٹیج کی وجہ سے زیادہ تر لوگ محلے کے تندور سے ہی روٹیاں لگواتے تھے۔ ان دنوں تندور والے کا کام بہت زیادہ چل رہا تھا، مگر وہ رات کے 7 بجے کے بعد تندور بند کر کے گھر چلا جاتا تھا۔ تندور میں لڑکی کے سونے کی بات اگرچہ اپنی جگہ بہت ہی عجیب تھی، اس وجہ سے ہر کسی کے لبوں پر اسی لڑکی کا ذکر تھا۔ اس لیے میں بھی سوچنے لگا، آج رات کو میں بھی اس لڑکی کو دیکھوں گا، کیونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں ایک جوان جہاں لڑکی بے یار و مددگار لاوارثوں کی طرح یوں گلیوں میں پھرتی ہو تو وہ کن بری نظروں کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی انہونی ہو جائے میں ایک حساس مند انسان ہونے کے ناطے اسے بچانا چاہتا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے لوگوں کی باتوں کا بھی ڈر تھا، کیونکہ اگر رات کے وقت مجھے تندور کے پاس کسی نے دیکھ لیا تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اس لیے میں نے سوچا میں اس معاملے میں اپنی والدہ کی مدد لیتا ہوں
आखिर को वो एक लड़की है, और अगर मेरी वालिदा मेरे साथ होंगी तो कोई भी कोई बात नहीं बनाएगा, और इस तरह हम लड़की को देख लेंगे। हो सकता है वो लड़की सच में ही हमारी मदद की मुस्तहिक हो। जब मैंने अपनी अम्मी से अपने ख्यालात का इजहार किया, पहले तो मेरी वालिदा मुझसे कहने लगी, बेटा हो सकता है वो कोई वारदाती लड़की हो, अब तो लोगों का कुछ भी पता नहीं चलता। यूं ही हमदर्दी बटोरने की खातिर वो हम जैसे हसास दिल रखने वाले लोगों को लूट लेते हैं। मुझे तो डर लग रहा है, तुम इन जंबेलों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। आराम से अपनी छुट्टी काटो, घर का काम खत्म होते ही अपने काम पर वापस लौट जाना। ये कहकर उस रोज अम्मी ने मुझे टाल दिया। फिर अगले रोज जाने क्यों मेरे दिमाग में बार बार उस लड़की का ख्याल आ रहा था। मैं घर के सेहन में बैठा घर की मरम्मत देख रहा था। अचानक से घर के सेहन में एक गेंद आ गिरी। गेंद देखते ही मैं पहचान गया, यकीनन ये शम्स ही अपने घर की छत पर खेल रहा होगा। शम्स हमारे पड़ोस में रहता था। इतने में शम्स दौड़ता हुआ हमारे घर में दाखिल हुआ और मुझसे सलाम करते हुए गेंद पकड़कर मेरे करीब आकर बैठ गया। मुझे बच्चे शुरू से ही बहुत पसंद थे, इसलिए मैं जब भी घर छुट्टी पर आता तो शम्स से मेरी कई बार मुलाकात होती, और इस मुलाकात में हम दोनों एक दूसरे से खेलते हुए खूब बातें भी करते। यानी वो छोटा सा शम्स मेरा दोस्त भी था। मैं शम्स से उसकी पढ़ाई के मुतल्लक बातें करने लगा। शम्स मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में बताते हुए उसी लड़की के बारे में जिक्र करने लगा। भाई, आपको मालूम है एक लड़की रोजाना ही हमारे मोहल्ले वाले तंदूर में आकर सोती है। रात को बाबा कह रहे थे उस बेचारी सी लड़कों ने बदतमीजी की है। वो बहुत रो रही थी। कोई लड़का उसे अपने साथ ले जाने के लिए अपनी तरफ खींच रहा था, जबकि दूसरे लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसकी ये बात सुनते ही मुझे बहुत दुख हुआ और मैं उससे पूछने लगा, क्या तुमने वो लड़की देखी है? शम्स मुझसे कहने लगा, नहीं भाई, वो सुबह होते ही कहीं चली जाती है। मेरे दोस्त कहते हैं वो कोई चुड़ैल है जो रात को आती है और दिन की रोशनी में गायब हो जाती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चुड़ैल वाली बात सुनते ही मैं उसके बालों में हाथ फेरते हुए उससे कहने लगा, पगले, ऐसी कोई बात नहीं, चलो अब तुम जाकर खेलो। फिर मैंने उस रोज फैसला किया, आज मुझे उस लड़की को हर सूरत देखना है और अम्मी को कैसे भी करके इस बात पर मनाना होगा। मेरे बेहद इसरार पर अम्मी मान गई, ये सोचते हुए कि शायद वाकई उस लड़की को हमारी मदद की जरूरत है। हैरत अंगेज तौर पर उस लड़की के वारिसों का किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। यानी वो लड़की हमारे करीब करीब किसी मोहल्ले की भी नहीं थी। मैं रात के होने का बहुत शिद्दत से इंतजार करने लगा। रात के 11 बजे मैं अपनी वालिदा को लेकर जब तंदूर के पास पहुंचा तो हम हैरान रह गए, क्योंकि तंदूर में वाकई एक लड़की बैठी हुई थी। तंदूर काफी बड़ा था, चूंकि तंदूर वाला रात के 7 बजे तंदूर बंद करके चला जाता था। वो लड़की तंदूर के कुछ ठंडा होने पर उसके करीब आकर बैठ जाती थी, और जब तंदूर सही से ठंडा हो जाता था तो उसके अंदर बैठकर शायद सो जाती थी। क्योंकि सर्दियां थी, इस वजह से आग के बुझने पर सुलगते हुए शोले बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। वो लड़की सो रही थी। वो प्लाट खाली था, उसके इर्द गिर्द भी इतनी आबादी नहीं थी, इस वजह से वहां पर रोशनी ना होने के बराबर थी। इसलिए मैं मोबाइल की टारच जलाकर उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर जो ही रोशनी पड़ी वो अचानक से जाग गई। वो हमें देखकर घबरा सी गई। उसी घबराहट में वो हमसे कांपती हुई आवाज से कहने लगी, मैंने कुछ भी नहीं किया, अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ भी ना कहना। मेरी वालिदा आगे बढ़ते हुए उसे दिलासा देते हुए उससे कहने लगी, बेटी डरो मत, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। वो लड़की जल्दी से तंदूर में से बाहर निकली। उसके कपड़े बहुत ही गंदे थे। उसकी हालत देखकर एक पल के लिए हमें भी ऐसे लगा कि वाकई वो पागल है। मगर जब मेरी वालिदा उसे अपने साथ जाने के लिए कहने लगी, पहले तो वो लड़की ने इनकार कर दिया, मगर फिर वो हमारे साथ घर आ गई। उस लड़की को घर में आते ही मेरी वालिदा अपने कपड़े देते हुए उससे कहने लगी, मेरी कोई बेटी नहीं, बस मेरे पास यही औरतों वाले मेरे ही कपड़े हैं, इसलिए तुम ये कपड़े बदल लो और अच्छे से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। उसने डरते हुए मेरी वालिदा से कपड़े लिए, और जब वो कपड़े बदल कर आई तो एक बार के लिए मैं हैरान रह गया, क्योंकि
पहले जब मैंने उसे देखा था तो वो बहुत ही गंदे कपड़े पहने हुए थी और शायद उसने कई दिनों से मुंह भी नहीं धोया था। यूं लग रहा था कि जिस लड़की को हम घर में लाए थे वो कोई और थी और चंद ही मिनटों में जो लड़की कपड़े बदल कर आई है वो कोई और है। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वालिदा ने उसे खाना ला कर दिया और वो जल्दी से खाना खाने लगी। शायद उसे भूख बहुत ज्यादा लगी थी। जब उसने पेट भर कर खाना खा लिया तो मेरी वालिदा उससे कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? उसने बताया कि उसका नाम हीरा है। फिर मेरी वालिदा ने उससे पूछा, तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारे बहन भाई किधर हैं? तुम कहाँ से आई हो? वालिदैन का नाम सुनते ही वो उदास हो गई और मेरी वालिदा से कहने लगी, मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं। अगर मेरे वालिदैन होते तो आज मैं इस तरह दरबदर की ठोकरें ना खाती। ये कहते हुए वो रोने लगी और फिर उसने बताया कि उसके 2 भाई हैं, शादीशुदा हैं और बाल बच्चे वाले हैं। पहले तो भाभियां उससे घर का सारा काम करवाती रहीं और उस पर तशद्दुद भी करती रहीं, लेकिन उनके जुल्मों सितम पर जब उसने आवाज उठाई तो भाभियां उस पर और चढ़ खड़ी हुईं और उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाते हुए उसके ही भाइयों से उसे पिटवाने लगी, जबकि वो बेचारी अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात को गलत साबित करने के लिए अपने भाइयों के आगे जो भी दलील रखती रही वो उसकी किसी दलील को ना मानते हुए उसे और ज्यादा मारते। नौबत यहाँ तक आई कि उसकी भाभियां उसको कहीं बेचना चाहती थीं, यानी वो लोगों की नजर में मेरा निकाह कर रही थी मगर असल में वो मुझे बेच रही थी। ये कहते हुए वो फिर से रोने लगी। हीरा उस वक्त इतना टूट चुकी थी कि वो बात बहुत मुश्किल से कर पा रही थी। वो इस कदर रो रही थी कि सिसकियां लेने लगी। मेरी वालिदा उसको आगे बढ़कर चुप करवाने लगी। फिर हीरा ने बताया, आंटी मैं कराची से भाग कर आई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई नहीं जानता। मैं रेलगाड़ी में बैठ गई थी, मेरे पास कुछ पैसे थे। मैंने घर से निकलते वक्त यही सोचा था कि मैं कभी भी इस दोज़ख में वापस नहीं आऊंगी, भले मुझे बाहर का कितना अजाब सहना पड़े। जब मैं लाहौर में उतरी तो लोग मुझे तरह तरह की नजरों से देखने लगे। मैं ऐसे ही कभी किसी महल्ले और कभी किसी महल्ले जाकर इज्जत बचाती रही, मगर ऐसे में औबाश लड़कों ने मेरा रात के वक्त जीना हराम कर दिया। मैं अपनी इज्जत को बचते बचाते यहाँ पर आ गई। अभी मुझे इस मोहल्ले में आए हुए 1 हफ्ता ही गुजरा है, यहाँ पर भी मुझे औबाश लड़के तंग करने लग गए हैं। वो लड़की इस कदर टूट गई थी कि अपनी आप बीती सुनाते वक्त वो रोने लगी। ना चाहते हुए भी हमारा दिल चाह रहा था कि उसकी बात पर यकीन करें, मगर आजकल के हालात को देखते हुए मैंने सोचा कि उस लड़की के बारे में पता करवाना पड़ेगा। वो बातों से काफी पढ़ी लिखी मालूम हो रही थी। फिर उस बात का मजीद इंकशाफ अगली सुबह हुआ, जब मैं नाश्ते के बाद चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था। मेरे हाथ में इंग्लिश अखबार था। वो लड़की वहीं पर बैठी अखबार की पिछली साइड पर लिखी हुई बड़ी बड़ी सुर्खियों को धीमी सी आवाज से पढ़ रही थी। पहले तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, फिर जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो वाकई में अखबार पढ़ रही थी। मैंने उससे कहा, क्या तुम इंग्लिश पढ़ना जानती हो? वो मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगी, आपको ये सुनकर यकीन नहीं होगा, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में MA किया हुआ है। ये तो घर के हालात ऐसे थे जिन्होंने मुझे इस तरह बना दिया। वो दिखने में भी अच्छी थी और काफी पढ़ी लिखी भी थी, मगर उस बेचारी का नसीब कैसा निकला। मुझे उसको देखकर बहुत हैरत हुई। पिछले 24 घंटों में वो लड़की मुझे मजीद हैरत में डाले जा रही थी। हम उस लड़की पर मुकम्मल एतमाद करने से पहले उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे, इसलिए जब उसने मुझे बताया कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैंने उससे कहा, तुम्हारे पास तुम्हारा ID कार्ड तो होगा? उसने फिर मुझे ID कार्ड देते हुए कहा, बस एक यही निशानी मेरे पास है, इसके अलावा और कोई निशानी मेरी शनाख्त के लिए नहीं बची। ये भी मैंने बहुत मुश्किल से लोगों से छुपाकर अपने पास रखा हुआ है। ये कहते हुए उसने अपना ID कार्ड मेरे हाथ में पकड़ा दिया, जिसमें उसका नाम, उम्र, पता सब कुछ लिखा हुआ था। जब मैंने नादरा से पता करवाया तो वाकई में उसका शनाख्ती कार्ड असली था। कुछ ही दिनों में वो लड़की मेरी वालिदा के साथ बहुत घुल मिल गई। मेरी वालिदा उसको अपनी बेटियों जैसा ही समझने लगी। मेरी छुट्टी भी खत्म होने वाली थी। अम्मी, अब इस लड़की का क्या करना है? मेरी वालिदा ये सुनते ही मुझसे कहने लगी, तुम भी कमाल करते हो। पहले हीरा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे तो तब उसे इस घर में ले आए, और जब उसके बारे में सब कुछ जान चुके हो तो अब उसे
फिर से दर बदर की ठोकरों के लिए लोगों के आगे छोड़ दोगे। मैंने अब उसको दिल से अपनी बेटी मान लिया है, और वैसे भी अल्लाह ने मुझे शायद इसीलिए बेटी नहीं दी थी क्योंकि मुझे इस उम्र में इतनी अच्छी और प्यारी बेटी मिलनी थी। ये कहते हुए मेरी वालिदा ने अपना फैसला सुना दिया। यूं हिरा को घर मिल गया और मेरी वालिदा को बेटी मिल गई और हम चारों भाइयों को बहन मिल गई। जानता हूँ मौजूदा हालात के मुताबिक इस तरह किसी पर भी यकीन करना आसान नहीं, मगर जरूरी नहीं हर इंसान ही गलत हो। आपकी कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।